you on behalf of Sports Authority of India Yes, ma'am. because a huge thanks to Radhika Shriman ma'am and the thought of welfare of para athletes from Sports Authority of India in this time of lockdown and a time when we needed to connect. So I will give a big thank you to Sports Authority of India, and we go ahead, sir. Please introduce yourself, and you can Yeah, welcome the athletes today on our behalf. it's a great privilege and honor that you have given me this opportunity to welcome. So I welcome on behalf of Sports Authority of India and PCI with all the para athletes of India to connect with us in this online sports development program for para athletes. And I'm really thankful to Sai that for the first time in this country that this kind of online development program for the para athletes is happening. And I'm really thankful for everyone like Deepa ma'am, the very well moderator, and he's guiding everyone how to go ahead. And and the last few three sessions conducted by Virendra Dabas sir, Satya sir, and you and others, it was very beneficial and informative for our para athletes of this country कि उनको कैसे जाना है, कैसे आगे जाना है. तो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑनलाइन और जहाँ सारे भारतवासी भारत के एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजर्स एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. सो मेरे हार्ट I heartfelt thanks to Sports Authority of India, Gandhinagar Center and Paralympic. Thank you all. Thank you. Yes, thank you. Rajiv, sir. Today's session is very special for me. It is indeed very close to my heart because we are going to be talking about categories on wheelchair and athletics, especially in wheelchair categories. And I'm also very happy that my fellow athlete, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हालांकि वो मुझसे बहुत छोटे हैं एज में, लेकिन मैं उनके साथ खेली हूँ और उनके साथ बहुत ट्रेनिंग की है. मुझे लगता है मेरे मोस्टली सारे कॉम्पिटिशन्स में हम इकट्ठे रहे हैं, हर ट्रेनिंग कैंप में हम इकट्ठे रहे हैं. तो एक बहुत क्लोज एसोसिएट जिसे मैं कह सकूं. सो अर्जुना अवार्डी, भीम अवार्डी, Arjun Award from 2013, Bheem Award, which is Haryana State Award from 2014, Asian Games medals 2010 silver, 2014 gold, and 2018 gold. World Championship silver medal in 2015, has been to 2 Paralympic Games 2012, 2016. He holds the Asian record in F51 category discus throw and club throw. Total 48 medals, including 26 international and 22 national medals. And that's a huge tally for somebody who is in the most severely disabled category that is present in our para sports in physical locomotive disabilities. That is, please welcome Amit Saroha. He is the speaker for today, and he will be supported and joined by Ekta Behan. Again, Ekta Behan is a pride of our nation. She has braved her disability, which is again 2 categories even higher than mine. Welcome, Ekta. Very proud to have you on board. And she, if I may talk about Ekta's achievements, Asian Para Games gold medalist, national awardee, ESPN and Sports Star Para Athlete Woman of the Year, qualified for upcoming Tokyo Paralympics, Asian and national record holder from past 4 years, and 4 international medals and 8 national medals, and a very short career span. She is a recent addition and not somebody who's been playing for so long, and yet she has been able to impress the entire nation with her sheer grit, determination, and her abilities beyond her disabilities. She's somebody who inspires me, and I'm very proud that we have heroes like Amit Saroha and Ekta Behan as members of the para sports fraternity. So I officially welcome you all, and I request Amit to take over and start the session. एक बहुत दिल से सेशन आगे आने वाला है, जो एक्सपीरियंस से आगे आने वाला है, और बहुत गर्व महसूस होता है कि जब दुनिया सोचती है कि जिस इंसान के हाथ तक भी ठीक से काम नहीं करेंगे,
वो इंसान आज से नहीं बल्कि अपने खेलों के मुकाम को छूते हुए गवर्नमेंट में पहले हमारे हरियाणा से जूनियर असिस्टेंट कोच रहे हैं, 2013 में बाकायदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और आज की डेट में वे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच के रूप में बहालगढ़ सोनीपत में पोस्टेड है। वेलकम अमित, फ्लोर इज योर्स, प्लीज टेक ओवर। और अभी तक हमारे एथलीट्स जो हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, so continue to make everybody join, Sandeep, and let's go ahead with the presentation. Welcome, Amit. थैंक यू मैम, इतनी तारीफ कर दी शायद आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है बहुत अच्छा लगा। और एकता के बारे में एक चीज और कहूंगा, एकता हाल फिलहाल हरियाणा में HCS हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक पढ़ी लिखी अधिकारी थी एकता, और उसके बाद मतलब एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल ने इनको पैरा फैमिली से जोड़ा है, वो बड़ा दिलचस्प रहा है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका मैम का, साई का और आप सब लोगों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है कि पैरा एथलीट को देखने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और हमारे कोचेस को भी, क्योंकि बहुत बड़ा एक पैरा स्पोर्ट्स है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट डिसेबिलिटीज होती हैं, तो हम लोग भी खुद पूरा नहीं जान पाए हैं अब तक। हर कैटेगरी के बारे में, हर इवेंट्स के बारे में, हर स्पोर्ट्स के बारे में हम लोगों को भी पूरा प्रॉपर नॉलेज अभी तक हुई नहीं है। बट अब तक मैं एज ए एथलीट ही हूँ, और जितना मैंने गेन किया है अपनी एक्सपीरियंस से, देख के, खेल के, सीख के, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और अगर कुछ मिस कर जाऊं या कुछ कहीं कमियां रहें तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं कोचिंग का पार्ट बहुत कम लेवल पे कर रहा हूँ। 2-3 ही एथलीट हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, और अभी टोक्यो ओलंपिक की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आप सब लोगों की दुआएं रहें, और ये कोविड का जो मामला है, होप सो जल्दी ठीक हो। पूरा देश और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन आए और पूरा वर्ल्ड दोबारा रीशेड्यूल होकर अपने काम पे लौटे। हम एथलीट भी अपनी ट्रेनिंग प्रिपेयर करें और टोक्यो में कंट्री के लिए मेडल जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। बेसिकली हम लोग संदीप पहली स्लाइड चलाएंगे एक बार। नेक्स्ट। तो देखिए, मैं कहूंगा कि मतलब रियल में व्हीलचेयर एथलीट क्या है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पास्ट में जाना चाहूंगा। पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत कहाँ से हुई? पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, और उसमें जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गए थे, जो फाइटर थे या जो आर्मी मैन थे, उनके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब वो फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई थी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हीलचेयर यूजर ने ही पार्टिसिपेट किया था। मतलब उसमें जो पहली बार शुरू हुआ था वर्ल्ड क्लास लेवल पे, और उसको फिर फॉर्मर तरीके से 1960 में पैरा ओलंपिक मूवमेंट को प्रॉपरली शुरू किया गया, और वो फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स शुरू हुए। उसमें हर कैटेगरी को जो उस टाइम पे जोड़ी गई वो जोड़ के और ऑफिशियली इसको शुरू किया गया। तो शुरू में इसको पैराप्लीजिया से लिया गया था, बट आज के दिन ओलंपिक का मतलब है पैरेलल टू ओलंपिक। मतलब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक के पैरेलल नजर से देखा गया है, इसीलिए इसका नाम पैरेलल टू ओलंपिक रखा गया है। और मैं ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ये दूसरे मतलब काफी लोगों का ये मानना है कि भाई ये एक एंटरटेनमेंट के लिए स्पोर्ट्स होता होगा। नहीं, पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स बहुत मेजर स्पोर्ट्स है, और इंडियन एथलीट अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि होप सो हम
टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में डबल डिजिट में मेडल में जाएंगे। तो इसी चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा कि पैरा स्पोर्ट्स, व्हीलचेयर स्पोर्ट्स क्या है। बेसिकली व्हीलचेयर स्पोर्ट्स में ये नहीं है कि आप व्हीलचेयर पे बैठे हैं वही व्हीलचेयर स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। जैसे बास्केटबॉल गेम्स है वो स्पेशली खेला व्हीलचेयर पे जाता है, बट उसके साथ साथ उसमें जो एम्पिटी होते हैं, पोलियो होते हैं, वो लोग वॉक भी करते हैं, बट वो खेलते स्पेशली व्हीलचेयर पे ही है। तो वो एक स्पोर्ट्स ऐसा है जो व्हीलचेयर पे ही खेला जाता है। व्हीलचेयर टेनिस है, उसमें भी वो लोग वॉक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो व्हीलचेयर पे बैठा है वही व्हीलचेयर स्पोर्ट्स खेलता है। तो जिनको पैर कट जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम होती है, पोलियो होता है, वो भी व्हीलचेयर स्पोर्ट्स में खेल सकते हैं। सेकंडली आता है कि 80% जो पैरालंपिक स्पोर्ट्स है वो व्हीलचेयर स्पोर्ट्स है। तो इसमें फेंसिंग है या कोई भी और दूसरे स्पोर्ट्स आते हैं। बहुत से एथलीट जो है वो व्हीलचेयर यूज करते रहते हैं। वो इसीलिए यूज करते रहते हैं कि भाई किसी को चलने में ज्यादा डिफिकल्टीज आती है तो वो पार्ट के तौर पे व्हीलचेयर पे ही मूव करते हैं, व्हीलचेयर उसके लिए चलाते हैं, यूज करते हैं अपनी लाइफ में। और मतलब मेनली जो स्पोर्ट्स है वो व्हीलचेयर स्पोर्ट्स इसलिए कहा गया है कि ये व्हीलचेयर पे बैठ के खेलते हैं। तो ज्यादातर इवेंट्स में हम व्हीलचेयर पे, जैसे थ्रोइंग इवेंट है वो व्हीलचेयर पे हैं, व्हीलचेयर रेसिंग आ गया। नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे संदीप। हम शुरुआत करते हैं व्हीलचेयर एथलेटिक्स में व्हीलचेयर रेसिंग से। व्हीलचेयर रेसिंग स्पोर्ट्स है जो पैरालंपिक गेम्स का बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स है। जैसे आप देख भी रहे होंगे स्लाइड में कि मेनली जब भी आप देखेंगे तो व्हीलचेयर रेसिंग का ही लोगों को वर्ल्ड वाइड ज्यादा दिखाई देता है पैरालंपिक गेम्स में। और इसकी मैं कैटेगरी की बात करूं तो इसमें 31, 32, 33, 34 चार कैटेगरी होती हैं सीपी की। और 51, 52, 53, 54 ये चार कैटेगरी होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं, पोलियो कह सकते हैं इनकी। इसके इवेंट्स जो मैं बताऊंगा आप लोगों को व्हीलचेयर रेसिंग के, इसका इवेंट जो होते हैं वो ट्रैक इवेंट होता है ये। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, रिले 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर, ये व्हीलचेयर रेसिंग के इवेंट्स हैं। इसकी जो डिसेबिलिटी होती है, ये ट्रैक पे खेला जाता है इसीलिए इसको टी से शुरू किया जाता है, टी से कंसीडर किया जाता है। इसकी जो मैं क्लासिफिकेशन वाइज जो डिसेबिलिटी होती हैं, इसमें मोस्टली जो हमारा सर्वर पॉलिसी के एथलीट आते हैं T31 से 34 तक। और उनकी जो डिसेबिलिटी होती है उनका 31 से 34 में वो 31 की जो एथलीट होती हैं उनके में मोस्टली चारों लिम्ब इफेक्टेड होते हैं और काफी स्टिफनेस उनको रहती है सर्वर पॉलिसी में। 32 जो क्लास आएगी वो इससे मोर देन बेटर होती है, उसका एक लिम्ब कम इफेक्टिव होता है, 3 लिम्ब इफेक्टिव होते हैं। और वो 32 क्लास में आते हैं व्हीलचेयर रेसिंग T32 में। और इसी तरह 33 क्लास में 2 लिम्ब इफेक्टिव होते हैं, और नहीं सॉरी 2 लिम्ब इफेक्टिव होते हैं। और उनकी जो डिसेबिलिटी होती है 32 से कम होती है। इसी तरह 34 में उनका लोअर लिम्ब इफेक्टिव होता है, अपर लिम्ब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है और स्टिफनेस उनको भी होती है। ये सर्वर पॉलिसी की क्लासेस हैं। इसी तरह जो T51 सॉरी, F तो फील्ड का है, T51 का जो रनिंग का क्लासिफिकेशन होती है उसमें F51 वेरी सीवियर डिसेबिलिटी इन पैरा स्पोर्ट्स, ये और 31 और 32 भी ये पैरा एथलेटिक्स की सबसे सीवियर डिसेबिलिटी हैं। और इनके जो एथलीट होते हैं वो मतलब यहाँ से पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत होती है पैरा एथलेटिक्स में। तो 51 जो क्लास है T51 वो व्हीलचेयर रेसिंग की क्लास है और उसमें क्वाड्रिप्लीजिया एथलीट आता है जिसके शोल्डर वीक होते हैं, फिंगर मूवमेंट नहीं के बराबर होती है और स्ट्रेंथ कमर में और पेट में बिल्कुल नहीं होती। तो वो 51 में आते हैं। इससे मोर देन बेटर 52 क्लास में आते हैं जो
जिनकी लिटिल बिट फिंगर वर्क करती है, शोल्डर बेटर होते हैं। इसी तरह 53 क्लास में कहेंगे जिसकी शोल्डर ठीक होते हैं, फिंगर मूवमेंट होती है और लिटिल बिट बैलेंस भी होता है उनका। और जो T54 क्लास है उसमें पोलियो और ये सारी चीजें आ सकती है 54 क्लास में। तो ये ट्रैक की जो कैटेगरी और इवेंट है और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो इसी तरह होती है। 31 से 34 तक सीपी के एथलीट होते हैं जो सर्वर पॉलिसी के होते हैं, जो ट्रैक इवेंट में है। और F51 से 54 तक पोलियो, एम्पेटी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये तीनों इसमें आएंगे। और काफी पॉपुलर स्पोर्ट्स है वर्ल्ड का। हमारे इंडिया में अभी इतना ज्यादा नहीं खेला जा रहा, हालांकि शुरुआत हुई है, कुछ एथलीट आए हैं खेलने के लिए। और जिस तरह की शुरुआत है वो हम कहेंगे कि काफी अच्छी है, क्योंकि टेक्निकली भी हम लोग काफी वीक है। तो मैं कोचेज को भी कहूंगा कि वो भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि ट्रैक इवेंट में मेडल काफी आते हैं। व्हीलचेयर रेसिंग के भी काफी इवेंट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरियों में। तो अगर हम इस एरिया को कवर करेंगे तो और हम लोग अपनी मेडल टैली को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही मैं इसकी डायमेंशन आपको बताना चाहूंगा। जो व्हीलचेयर रेसिंग की डायमेंशन होती है वो इसकी हाइट जो ग्राउंड क्लियरेंस से है वो 50 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और जो पिछले टायर होते हैं बड़े उनकी 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और जो अगला छोटा टायर होता है वो 50 सेंटीमीटर तक का होता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 2 लाख से शुरू होती है। इंडिया में ये अभी अवेलेबल है नहीं, इसको बाहर से ही मंगाना पड़ता है। और ये जो है व्हीलचेयर, ये एथलीट की इंजरी और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कस्टमाइज होती है। तो ये व्हीलचेयर रेसिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल में हम ले सकते हैं। क्वेश्चन एक मैराथन ऑन व्हीलचेयर पे आया है जो मैंने चैट रूम में देखा है कि क्या मैराथन्स भी होती हैं व्हीलचेयर पे, इज दैट आल्सो अ पैरालंपिक इवेंट? एक ऐसा मेरे को ये आया है। और एक ने इंफॉर्मेशन दी है कि 80,000 में ये व्हीलचेयर रेसिंग शायद मोटिवेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सो दीज आर द टू मैसेजेस दैट आई कैन सी। और एक क्वेश्चन और आया है कि हु इज प्रोवाइडिंग व्हीलचेयर रेसिंग कोचिंग? तो मेरी भी नॉलेज में ये बात शायद अभी इतनी ज्यादा नहीं है। एक विजय साथी हैं जो व्हीलचेयर रेसिंग प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो हमारे साथी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो चेन्नई से हैं और प्रॉपरली कोचिंग का, भैया भी मैंने अपनी बात में मेंशन भी किया कि कोचिंग को भी थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने का और पार्ट है। मैं ये देख रही हूँ कि हाल ही में कम से कम 20 से 25 लोगों ने और ज्वाइन किया है लास्ट 3 मिनट्स के अंदर ही। तो एक बार फिर से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दैट प्लीज लीव योर नेम, प्लेस एंड डेजिग्नेशन चैट रूम में। जो चैट बॉक्स का एक चैट लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आता है उस पे जरूर अपनी अटेंडेंस छोड़ के जाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अटेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज वो कंटिन्यू करते रहिएगा। Don't forget to write your name and place and designation so that we can keep in touch. हम आपके साथ टच में आगे भी रह सकते हैं। ये सिचुएशन कितनी लंबी चलेगी और नहीं भी चलेगी तो भी this is a very good platform for us to reach out and keep meeting each other and keep growing the knowledge of para sports and awareness of para sports. So आपका अगर एक interest है तभी आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका डेटा हमारे पास रहेगा तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू अमित। देखिए मैराथन के बारे में, हाँ बिल्कुल है, व्हीलचेयर रेसिंग की मैराथन होती है और वो काफी मेजर इवेंट है। तो जैसे आपने भी कहा है कि हम लोगों को ज्यादा व्हीलचेयर रेसिंग के बारे में नॉलेज है नहीं, जितना मेरे पास थी या जितना मुझे पता था वो मैं मोस्टली आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैंने मिस किया है व्हीलचेयर मैराथन को। तो व्हीलचेयर मैराथन का स्पोर्ट्स होता है वर्ल्ड क्लास लेवल पे, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में बहुत कम इवेंट कराए जाते थे व्हीलचेयर रेसिंग के, वो भी अभी पिछले 2-3 साल से ही शुरू हुए हैं व्हीलचेयर रेसिंग के इवेंट, क्योंकि पहले कोई होता ही नहीं था। विजय सारथी, आपने बिल्कुल सही कहा। यस, सो आई थिंक एक ये मेजर एरिया है। अगर हमें कोचेस हम लोगों से जुड़े हैं, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मेंबर्स जुड़े हैं,
तो एक इस सेशन से ये उठकर आता है कि व्हीलचेयर रेसिंग, व्हीलचेयर टेक्नोलॉजी, व्हीलचेयर इक्विपमेंट्स ऑफ रेसिंग, जो रेसिंग व्हीलचेयर्स हैं, और उसका जो कोचिंग का एरिया है वो, उसमें अभी बहुत स्कोप है इंडिया में। अगर कोई इसको डेवलप करना चाहता है तो दिस इज अ वेरी रॉ एरिया जिसको लोग टैप कर सकते हैं, इस पोटेंशियल में जा सकते हैं। बिकॉज बहुत पॉपुलर इवेंट होता है व्हीलचेयर रेसिंग, बहुत एक्साइटमेंट आता है व्हीलचेयर रेसिंग के जब कॉम्पिटिशन्स इंटरनेशनल लेवल्स पे होते हैं। जी। और इवन मैम व्हीलचेयर रेसिंग का एक और पार्ट जो अभी हमारी जो रिले जो टीम होगी, अभी आईपीसी ने रूल चेंज करके उसको यूनिवर्सल रिले का रूप दिया है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग एथलीट को एक ही रिले, पहले बहुत सारी रिलेज होती थी उनको मर्ज करके एक ही बना दिया गया, तो उसमें भी व्हीलचेयर यूजर का पार्ट बड़ा अहम है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए और हर पार्ट को अगर हम कवर करके चलें तो डेफिनेटली हमारे एथलीट में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और अगर शुरुआत की जाए तो व्हीलचेयर रेसिंग, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी कहा था, कि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जहां हम लोग मेडल टैली को बढ़ा सकते हैं। मैं एकता से कहूंगा अगर वो इसके बारे में अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू टू साई एंड पीसीआई फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस चल रहा है हमारे लिए पिछले 2-3 दिन से, और आने वाले 15 दिन तक चलेगा। वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और जहाँ तक व्हीलचेयर एथलीट्स की बात है, इसमें सबसे हमारी डिसेबिलिटीज में सबसे जो चैलेंजिंग डिसेबिलिटी है क्वाड्रिप्लेजिक, वो डिसेबिलिटी व्हीलचेयर रेसिंग, व्हीलचेयर थ्रोइंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें मेरा यही कहना है कि दिस कैन बी अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन अ डिसेबल्ड पर्सन्स लाइफ। और मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दूं तो मुझे 2003 में इंजरी हुई थी, और उसके बाद से जब मैंने रिहैब किया तब तो आई वाज एक्टिव फिजिकली, मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी। बट उसके 14 साल के गैप के बाद, स्पोर्ट्स में आने के बाद ही मैं इतनी फिजिकली स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। इनिशियली आई वाज एबल टू जस्ट लिफ्ट द हाफ kg एंड नाउ आई एम एबल टू लिफ्ट 2 kg डंबल्स। तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके यही कंक्लूजन निकला है कि व्हीलचेयर एथलेटिक्स इज समथिंग दैट कैन प्ले अ वेरी major role, a very crucial role in someone disabled person's life. Thank you. Sandeep, can you look for Dr. Palani Sanjay and get him on the screen and unmute? आप उन्होंने अभी मेंशन किया है कि वो व्हीलचेयर की ट्रेनिंग दे रहे हैं मनोज को, तो हम उनसे 2 सेकंड बात कर लें, उनके व्यूज इसमें ले सकते हैं अभी। डॉक्टर पलानी संजय, PALANI। उनको आप मेन स्क्रीन पे लेंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल। डॉक्टर पलानी संजय, कैन यू कम ऑन द स्क्रीन? अनम्यूट कर दीजिए उन्हें। हाँ। Hello. Hi, ma'am. Is it Dr. Palani? Yeah, this is Palaniswamy, ma'am. हाँ जी, वेलकम। इट इज वेरी आज काफी चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एंड दिस इज Anna, we will request you to speak for 2 minutes about wheelchair racing, if that you can, and then we'll go back to Amit's session. Okay. Actually, I am giving you the training for wheelchair race. Specifically for, we need the technical support. So that I studied for some articles. They said, एक तो यहाँ पे क्लोज का बटन है ना, वो क्लिक करो। hello, can you hear? Ekta, you'll have to be on mute.
Yeah, please, because we're keeping you unmute as you are a co-host speaker, but during other person speaking, you'll have to be quiet. Hanji, please go ahead, Kalani ji. Okay. This is Palaniswamy from Tamil Nadu. Ji. Actually, I am giving the training for Mr. Manoj Kumar. He's an international player. Last time he's participated in North Africa. And he got 2 medals in 100 and 200 meters, silver medals. Ji, that's nice. So, so where do you procure these wheelchairs from? These racing wheelchairs. Yeah, that one is imported in US. And what is the approximate cost of that wheelchair in Indian currency? That is currently for 4 lakhs. Okay. And maintenance, transportation is again, so it's a very cost-effective sport. Yeah, that one, all things. In case of we got the customs and also. So, sir, what is the financial support system right now for Manoj? How are you purchasing and maintaining this cost for him? Actually, we are a rehab setup. We have the Paralympic Sports Academy. Okay. So and not only an independent body, and this is a body in Chennai. Which city of Tamil Nadu? From Coimbatore. Coimbatore. Okay. Yeah. So, sir, it will be really nice if you can send in a email to us, and if any more athletes are interested, we can direct towards you, because till now you are one person we know who's coaching. So it will be really nice. Please write in on PCI President Deepa@gmail.com. I'll be happy to receive an email from you. Sure. I will send you. it the details. Yes. Over to Amit. Amit, please go ahead with your session. थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत तो हुई, जो हम लोग अभी कह रहे थे कि ये एक अच्छा पार्ट है जहां शुरू किया जा सकता है। तो और वो 80,000 का जो क्वेश्चन था, तो अब तक का ऑलमोस्ट हमने तो यही देखा था कि इंडिया में शायद नहीं बनती, पर किसी ने हो सकता है शुरुआत की हो, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर इतनी कम कॉस्ट में अगर रेसिंग चेयर मिल रही है तो इससे और बेटर हमारे एथलीट कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेन है जो जिसके बारे में बात करूंगा वो व्हीलचेयर एथलीट इन एथलेटिक्स, क्योंकि रेसिंग के बारे में मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो मैं जितना मुझे था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मेन एथलेटिक्स में व्हीलचेयर एथलेटिक्स के ही बारे में मैं बात करूंगा। इसमें हमारी जो क्लासेस होती हैं वो एफ से शुरू होती हैं, एफ मेन फील्ड्स, और ये होती हैं 51 से लेकर और 57 तक। अलग अलग डिसेबिलिटी के एथलीट को अलग अलग कैटेगराइजेशन करके और वो अपनी अपनी क्लास में खेलते हैं। और दूसरा है F31 से 34, ये सर्बर पॉलिसी और सीपी की क्लासेस होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम इनकी इंजरी और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। F31 और 31 जो कैटेगरी है वो जैसे व्हीलचेयर रेसिंग में भी मैंने उसके बारे में जिक्र किया है, वो सर्वर पॉलिसी की ही क्लास है और उसमें चारों लिम्ब इफेक्टेड होते हैं। और जो 31 क्लासेस है उसमें हम लोग क्लब और डिस्कस इवेंट करते हैं। शॉर्टपुट और जेवलिंग उसमें नहीं होता क्योंकि बहुत सीवियर डिसेबिलिटी है, और शॉर्टपुट और जेवलिंग में इंजरी होने के चांसेस इस कैटेगरी में ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे। इसी तरह 32 क्लास है, उसमें भी डिस्कस शॉर्टपुट भी आ जाता है 32 में, क्योंकि वो जो डिसेबिलिटी है वो हायर है 31 से, और उसमें जो चारों पार्ट इफेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड सर्वर पॉलिसी में, और मसल्स बहुत स्टिफ होती हैं, बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस कैटेगरी में। और इसमें शॉर्टपुट है और डिस्कस और क्लब ये इवेंट इसमें कराए जाते हैं। इसी तरह 33 क्लास है, वो सर्वर पॉलिसी की है। इसमें आपका 2 अपर लिम्ब जो है वो इफेक्टेड होते हैं। और इसी तरह 34 क्लास है,
उसमें आपके 34 क्लास है, इसमें आपके लोअर लिम्ब इफेक्टेड होते हैं, अपर लिम्ब आपके बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं, नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा उनको मसल्स में प्रॉब्लम होती है, बट ये काफी स्ट्रांग क्लास में आती है। और इस डिसेबिलिटी में वॉकिंग भी कर सकते हैं कुछ एथलीट, सब तो नहीं कहेंगे। अब हम दूसरी कैटेगरी आते हैं 51 से 57। 51 से 57 जो क्लासेस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की एम्पेटाइज होता है उसकी, और पोलियो, ये तीनों 51 से 57 में पार्टिसिपेट करते हैं। और 51 क्लास है वो वही मैंने अभी बताया था कि सबसे सीवियर डिसेबिलिटी कैटेगरी में आती है। इसमें आपके शोल्डर काम नहीं करती, चेस्ट बिलो पैरालाइज होता है, और शोल्डर भी प्रॉपर वर्क नहीं करते, फिंगर मूवमेंट ना के बराबर होती है, और काफी सीवियर डिसेबिलिटी है। जिस कैटेगरी में मैं हूँ, एकता भी उसी कैटेगरी में खेलती है, तो काफी परेशानियां होती हैं इस कैटेगरी में। और इस कैटेगरी के जो इवेंट हैं वो डिस्कस और क्लब थ्रो है। क्लब थ्रो के बारे में हम आगे बात करेंगे, डिस्कस को तो आप सब लोग जानते ही हैं। क्लब थ्रो के बारे में शायद सभी को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। 52 क्लास आती है, ये 51 से बेटर होती है, इसमें भी फिंगर में हल्की सी मूवमेंट होती है और शोल्डर ठीक होते हैं। जो और मतलब पेट की स्ट्रेंथ होती है वो नहीं होती, बैलेंसिंग बहुत कम, जीरो होती है इसमें। और इसमें शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, ये तीनों इवेंट आते हैं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ क्लब थ्रो का जो इवेंट है वो स्पेसिफिक 51, 31 और 32 के लिए ही है, बाकी किसी कैटेगरी में ये इवेंट नहीं करा जाता। बाकी हायर कैटेगरी में वही शॉर्ट पुट, डिस्कस और जेवलिंग होता है। तो इसी तरह 53 क्लास है। ज्यादा क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें, क्योंकि अभी एक सेशन स्पेशली क्लासिफिकेशन का होगा, तो वो आपको डीपली और बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से बताएंगे। मैं मोटा मोटी तौर पे आपको थोड़ा सा उनके बारे में बता रहा हूँ। 53 क्लास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड और पोलियो भी हो सकता है इन क्लासेस में, और वही शोल्डर उनके ठीक होते हैं, फिंगर में थोड़ा सा फ्लेक्ट में कमी रहती है, और बैलेंस बहुत कम मात्रा में होता है उनका। इसी तरह 54 जिसमें दीपा मलिक जी खेलती हैं हमारी, वो 53 क्लास में ही उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है, और वो उनकी क्लास थी। और 54 क्लास में आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ, हाथ वगैरह बिल्कुल फिट होते हैं, और कमर का बैलेंस नहीं होता, उसमें मूवमेंट नहीं होती। 55 में ज्यादातर पोलियो और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही आ जाते हैं मोस्टली इसमें, और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पेट की मसल्स वगैरह प्रॉपर काम करती हैं, स्ट्रेंथ होती है उनमें, और हिप यूज नहीं होता उसमें ज्यादातर। इसी तरह 56 और 7 जो क्लासेस हैं वो पोलियो, एम्पिटी और उस सब की आती है, उसमें आपका 6 में हिप यूज हो जाता है, और 7 में अदर जो भी एम्पिटी होते हैं, जो भी दूसरी डिसेबिलिटी आती है, वो सारी 57 में आ जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि 51 और 50, 31 और 32 के छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी में वही नॉर्मल जो आपके शॉर्ट पुट, डिस्कस, जेवलिंग होते हैं, इनके वेट अलग अलग होते हैं। जैसे 52 और 32 क्लास में 2 kg का शॉर्ट पुट होता है, इसी तरह 54 से ऊपर 4 kg आ जाता है, 53 में 3 kg आता है। तो और डिस्कस मोस्टली 1 kg की होती है सभी में, जेवलिन 600 ग्राम की होती है। इवेंट जो मैंने आपको बताया है कि क्लब थ्रो और जो है वो इन 3 कैटेगरी के लिए होता है, बाकी सब में डिस्कस, शॉर्ट पुट और जेवलिन होती है। क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने मोटा मोटी डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड संदीप, इसके बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप बताइएगा। कोई क्वेश्चन अगर आए हैं तो। No, not many questions have come up. Not yet. I will ask you when I see on the chat box. ओके, एकता आप अगर इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बात करना चाहें तो एकता को अनम्यूट करेंगे प्लीज। All the topics are covered, sir. Like all the categories are covered, and which games are assigned to these categories are covered.
and the kind of disabilities are covered. Mainly यही है कि spinal cord injury, cerebral palsy, polio and amputee. These disabilities are included in these categories. So all the stuff is completed. बस इसमें ये बताना चाहूंगी कि क्लब थ्रो एक 400 ग्राम्स का एक वुडन प्लैंक होता है जो कि हम फेंकते हैं एक थ्रोइंग फ्रेम पे भी बैठ के फेंक सकते हैं उसको, और हम अपनी व्हील चेयर पे भी फेंक सकते हैं उसकी डायमेंशंस को देखते हुए। इसमें जिसमें एकता, हमें अगर मैं आपसे एक सवाल रखूं, जी मैम। तो जी हमारा एक क्वेश्चन है। जी सर, जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये क्लब है, जी क्लब मैम, का इक्विपमेंट प्रोक्योर कहाँ से कर सकते हैं? ये मैम यूके से ही प्रोक्योर किया जा सकता है। इट इज नॉट तो आप अवेलेबल लोग इन जब इंडिया। स्टार्ट करते हैं एज अ क्लब थ्रो, तो अगर कोई इंसान क्वाड्रिप्लेजिक है और वो देखना चाहता है, तो आई थिंक मैं एक स्टिकी ग्लू भी देखती हूँ, उसके बारे में भी आप अभी बताएंगे या टुवर्ड्स द एंड यू विल बी नहीं, वो नेक्स्ट स्लाइड में है वो सारी चीजें। ओके हाँ, तो वी विल कम टू दैट लेटर। जी अमित जी हमारा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए बताइए। सत्यनारायण सर, वेलकम। अमित जी मेरे को ये बोलो, ये रेसिंग व्हील चेयर में 52 वाला 51 में खेल सकता है क्या? देखिए सर, वो डिसेबिलिटी, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मोस्टली इसमें जो ट्रैक इवेंट में है वो थ्रोइंग मतलब फील्ड इवेंट से एक कैटेगरी डाउन चली जाती है, पर वो श्योर नहीं है सर कि वो हर कैटेगरी में वो डाउन लेके जाते हैं एक कैटेगरी में। मतलब वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे, वो उसकी रेंज पे डिपेंड करता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम डिसेबिलिटी किस क्राइटेरिया में आ रहे हो। मतलब वो मैंने पढ़ा था, वो आपके बताने के बाद मैंने उसको देखा और रिसर्च भी किया। मतलब वो डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन पे ही, मतलब ये श्योर नहीं है कि आपकी एक लोअर क्लास हो जाएगा। इसलिए हमारा नेशनल में भी लोग आके हमारा को बोलता है 53 वाला 52 में खेल सकता है, 54 वाला 53 में खेल सकता है। हमारा को थोड़ा सर देखिए, देख के क्लैरिफिकेशन करना। बिल्कुल सर, देखिए काफी टेक्निकल पॉइंट है ये, और मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि ये मेरा एरिया नहीं था, और व्हीलचेयर रेसिंग के बारे में इंडिया में ही अभी तक इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हमारे क्लासिफायर को इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा, और मे बी 1-2 दिन में नेक्स्ट उनका सेशन है हमारा, और उनको और ध्यान से इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ के तभी टेक्निकल चीजों पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में हम चाहेंगे कि हमारे क्लासिफायर अच्छे से डिटेल में वो बताएं। हमारे पास जो मेरी अपनी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है सर। थैंक यू अमित, मोस्ट वेलकम सर। नहीं इसलिए नेशनल में हमारा बहुत कंफ्यूजन चल रहा है इसका बारे में। नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे सर आगे। तो मैम और कोई क्वेश्चन है या नेक्स्ट पे जाएं? नहीं, हम जा सकते हैं नेक्स्ट पे, यू कैन गो अहेड। ओके, अगला है हमारा ट्रेनिंग और रिकवरी। देखिए व्हीलचेयर एथलीट की जो ट्रेनिंग और रिकवरी है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है उसकी परफॉर्मेंस पे, और अभी तक हमारे पास ज्यादा मैं कहूंगा कि जो वर्ल्ड क्लास लेवल के हमारे जो कोचेज हैं वो हमारे पास 4-5 ही कोचेज थे जो अब तक पैरा स्पोर्ट्स में काम कर रहे थे, और उन्हीं का जो नॉलेज गेन उसमें चाहे सतपाल कोच साहब हो, नवल सिंह हो, आर.डी. सिंह हो, सत्यनारायण जी हो, या अभी जो नए जुड़े हैं सुनील हो, तो मतलब अब तक इतने ज्यादा कोचेज एक्टिव नहीं थे। बट ये अच्छी बात है कि अब काफी लोग पैरा स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, कोचेज भी काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि नई फील्ड है, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और एक्सपीरियंस भी काफी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं फिर घूम फिर के वही बात आती है कि नेशन फर्स्ट, अगर अच्छा काम होगा, लोग ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा चीजें निकल के आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो मेडल भी ज्यादा जीत पाएंगे कंट्री के लिए। तो इसमें मैं यही कहूंगा, जो ट्रेनिंग का प्लान है, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वो हमारे कोचेस को बड़े ध्यान से व्हीलचेयर एथलीट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, और नियर अबाउट 6 महीने तो उनको समझने में ही निकल जाते हैं कि हम इनको किस तरह ट्रेनिंग कराएं, क्या ट्रेनिंग कराएं। मतलब काफी डिफिकल्ट पार्ट है, और इसमें आपकी जो ट्रेनिंग है, मैं ये कहूंगा ट्रेनिंग से ज्यादा फोकस रिकवरी पे होता है।
जो सीवियर डिसेबिलिटी है, जैसे 51 से 53 और 31, 32, 3, ये ऐसी डिसेबिलिटी हैं, इनमें ट्रेनिंग से ज्यादा हम लोगों को बॉडी रिकवरी पे फोकस करना पड़ता है। अब एथलीट को ये लगता है कि हम ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि सेंसेशन और मूवमेंट बहुत कम होती है, वो पता तो चलता नहीं, वो बॉडी 100 में चली जाती है। आपका तो खुद एक्सपीरियंस रहा है, इतना लंबा कैरियर रहा है आपका। और तो रिकवरी का पार्ट मेरे हिसाब से ट्रेनिंग से भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोग बॉडी को पूरा रिकवरी करें। ट्रेनिंग सेशन मैं ये मानता हूं कि जो लोअर कैटेगरी है 51, 52, 53, उन क्लासेस में जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अगर आप दिन में एक सेशन ले रहे हैं, हफ्ते में आप 5 से 6 सेशन भी अगर ले रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन, 2 घंटे के भी हो सकते हैं, वो 2.5 घंटे के भी हो सकते हैं, वो 1.5 घंटे का 3 घंटे का भी हो सकता है, तो अगर एक सेशन भी आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि वो सफिशिएंट है। पर वो डिपेंड करता है हर आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी क्या कैपेबिलिटी, आप कितना लोड डाल रहे हो शरीर पे, कितना आप उसको रिकवरी ले सकते हो कितनी जल्दी। अब बहुत से एथलीट ऐसे हैं जो दिन में 2 टाइम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर इन जो सीवियर डिसेबिलिटी के एथलीट हैं, मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर वो एक सेशन भी अच्छे से लेंगे, दिन में अगर एक सेशन भी लेंगे तो 24 आवर लग जाते हैं बॉडी को प्रॉपर रिकवर होने में। और ऑब्जर्वेशन भी यही है कि रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं जो मैंने देखा है। कोचेज को भी थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो एथलीट के साथ फॉर्मल होके प्रॉपर उसकी इंजरी को देख के उसकी जो लिमिटेशन है उनको देख के ट्रेनिंग कराएं, क्योंकि व्हीलचेयर स्पोर्ट्स बहुत अलग है, इनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं। जब तक आप उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाएंगे आप रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब एक एथलीट किसी चीज को पकड़ ही नहीं पाता, ग्रिप ही नहीं है उसके हाथ में, उसका शोल्डर प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है, और आपने उसको डंबल पकड़ा दिया या बांध दिया तो वो कितना कर पाएगा। तो उस एथलीट की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग डिजाइन करें और उसकी कैपेसिटी को देख के उससे ट्रेनिंग कराएं, और वो भी साइंटिफिक तरीके से कराएं। अब वो रनिंग तो कर नहीं सकता या उसके पैरों की कोई मूवमेंट है नहीं एथलीट की, वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो हाथ से ही कर रहा है, वो अपने घर में व्हीलचेयर चला रहा है, खाना खा रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है, बैठ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, तो मतलब जो भी पार्ट उसकी बॉडी का चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाथों से ही उस पे काम कर रहा है। तो हमारे को बड़ा ध्यान दे के इस चीज को कराना पड़ेगा कि भाई इसने कितनी ट्रेनिंग की और कितना टाइम इसको रिकवरी के लिए चाहिए। यहाँ पे मैं डेफिनेटली एक बात कहूंगी, बिकॉज आई एम माई सेल्फ व्हील चेयर यूजर एंड आई हैव बीन एन एथलीट इन सिवियर डिसेबिलिटी। 53 है मेरी, अपर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। ऑफ कोर्स 51 में एकता और अमित खेल रहे हैं, वो मेरे से 2 डिग्री ज्यादा सिवियर डिसेबिलिटी है। मेरे हाथ फिंगर्स काम करते हैं पर टॉर्सो बैलेंस नहीं है। इसमें मैंने जो नोट किया है अपनी ट्रेनिंग में कि जितना कोच का एक रोल रहता है उतना फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी बहुत ज्यादा रहता है। हम खासकर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जितने भी हैं, तो आप नोट करिएगा कि स्पेसिफिक फिजियोथेरेपिस्ट फॉर व्हीलचेयर एथलीट्स पे भी हमारा एक सेशन अपकमिंग आ रहा है। तो प्लीज फॉलो ऑल द सेशंस, आपको इससे कोरिलेटेड नॉलेज भी इवेंचुअली मिलती रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू साइंटिफिकली ऑल्सो अंडरस्टैंड। हम लोग एज एथलीट या एज अ कोच पर्सपेक्टिव से बात कर पाएंगे, लेकिन साइंटिफिक जो इसके पीछे नॉलेज है, जैसे व्हीलचेयर यूजर के लिए स्पेसिफिक कैसी डाइट होनी चाहिए, ईच डिसेबिलिटी इज डिफरेंट, उसके ऊपर भी हमारे एक फॉलो अप सेशंस आएंगे। सो प्लीज कंटिन्यू टू अटेंड दोज क्लासेस। वो आपस में बहुत एलिमेंट्स होते हैं एक पैरा एथलीट के लिए, स्पेशली व्हीलचेयर सिवियर डिसेबिलिटी एथलीट के लिए। वन सिंगल सेशन में वो बात उभर कर नहीं आएगी आपको, तभी हमने हमारा ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है कि आप पूरा अटेंड करें तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आएगी, एक ओवरव्यू नजर आएगा कि एक पैरा एथलीट के लिए
कितनी साइंस, कितना न्यूट्रिशन, कितना सपोर्ट स्टाफ लगता है। और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपने नाम, अपना डेजिग्नेशन और अपना प्लेस ऑफ ज्वाइनिंग जरूर चैट के अंदर एज अटेंडेंस मेंशन करते रहे। यस अमित, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा है। और Dr. Satyapal wants to say something. I think we'll take a view of Dr. Satyapal. Sandeep, can you unmute Dr. Satyapal, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, welcome, sir. Good afternoon. I can see आपका एक comment chat box में. We will love to hear that, sir. जी मैम अभी सत्यनारायण सर ने एक क्वेश्चन किया था क्या 52 वाला 51 में पार्टिसिपेट कर सकता है? ओके, मैं उसी का आंसर देना चाह रहा हूँ मैम। 51 से लेकर 54 तक सभी एक ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन उनका अकॉर्डिंग टू पॉइंट के आप रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन आप 52 को 51 के साथ कंपीट नहीं कर सकता। ग्रुपिंग कर। सर ये जो पॉइंट सिस्टम की आपने बात करी है तो उस पे भी थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज मेरे हर सर्टिफिकेट पे लोग पूछते हैं कि 51, 52, 53 लिखा हुआ आता है और किसी का डिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का डिस्टेंस कम होता है, और फिर भी कम वाले को गोल्ड मेडल मिल जाता है, ज्यादा वाले को सिल्वर। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। हालांकि मुझे लगता है पैरालंपिक से अभी इसको स्ट्रेट पॉइंट सिस्टम हटा दिया गया है, सो दैट हम अपने स्पोर्ट को पॉपुलर कर सकें। और ये क्लबिंग ऑफ क्लासेस जो होती हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आम पब्लिक को या मीडिया को उसको एब्जॉर्ब करने में, अंडरस्टैंड करने में। लेकिन एशियन गेम्स पे और कई बार हमने देखा है जो एशियन और ओशियाना चैंपियनशिप्स होती हैं और नेशनल्स में भी हम लोग कैटेगरी क्लब करते हैं, तो हम अपना पॉइंट सिस्टम कैसे लेते हैं, आप उस पर जरूर 1-2 मिनट बोलेंगे सर। यस मैम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ओलंपिक लेवल पे आईपीसी जो है चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्लियर रिजल्ट हो, लोगों के जर्नल जो लोग हैं उनको समझ में आए, इसलिए वहां पे पॉइंट सिस्टम यूज नहीं किया जाता है, जिससे कि आम देखने वालों को, टीवी पे देखने वाले को ये पता चले कि आपका शॉर्टपुट इतना फिक्रा है तो आप इतने, आप फर्स्ट हो, इतना फिक्रा तो आप सेकंड हो। लेकिन पैरा स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल पे और कुछ इंटरनेशनल इवेंट लेवल पे प्रमोट करने के लिए वहां पे एक पॉइंट सिस्टम यूज किया जाता है, जिसको रजा पॉइंट सिस्टम कहते हैं जी। वो पॉइंट सिस्टम हमारे करंट परफॉर्मेंस और वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए एक आईपीसी एक पॉइंट सिस्टम बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस को डालते हैं तो आपके पॉइंट निकल के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करो किसी डिसेबिलिटी में जैसे 51 कैटेगरी है, इसमें काफी जगह इवेंट नहीं हो पाते क्योंकि इतने एथलीट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इनको एक साथ क्लब करके इवेंट को कराया जाता है और फिर वहां पॉइंट सिस्टम से रिजल्ट को बनाया जाता है जी। थैंक यू सर। एंड एकता वांट्स टू ऐड समथिंग अबाउट द इंजरी ऑफ पैरा एथलीट्स, तो डेफिनेटली एकता हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। जी मैम इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली फॉर द स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्संस, उनको स्वेटिंग नहीं होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट they don't feel thirsty as comparison to the an able bodied person जी। तो उस वजह से लिक्विड इनटेक कम होता है, तो there are more chances of having injury. So इसमें यही पॉइंट ये है कि even if we are not feeling thirsty, we need to take care of the liquid intake in that case too, to prevent injuries, especially for the spinal cord injured persons. इसमें मैं एक और टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे शेयर करूंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो सुन रहे हैं कि till at least 54-55 कैटेगरी तक भी ब्लैडर चैलेंज्ड होता है, कंट्रोलिंग ऑफ द यूरिन नहीं होती है, जैसे मुझे नहीं है, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट डिस्कसिंग दिस इशू। तो कोचेस को ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जब एथलीट प्ले ग्राउंड में आता है तो या तो वो कैथेटर्ड होता है या वो एथलीट डायपर शायद पहने हुए होता है, तो उनको वेट कराना, लंबा बिठाए रखना भी एक इशू हो जाता है। बिकॉज I have sat for 4-5 hours wearing the same diaper on the training ground, क्योंकि चेंजिंग रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं या नजदीक में लेट के पहन के डायपर बदलने की प्राइवेसी नहीं होती है।
और ऐसे में अक्सर हम लोग पानी फिर कम पीते हैं कि टाइम ज्यादा है तो पानी कम। तो आई थिंक ये भी कोचेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब वो पैरा एथलीट्स को इन व्हील चेयर एंड स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स को डील करते हैं। सो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द टाइम and the temperature of the day and the time and the area where they're training. So this is a very important aspect in wheelchair training. We will move to Amit again. थैंक यू। इसमें देखिए आप लोगों ने वो चीजें काफी कवर कर दी जो इसमें बची थी। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हर एथलीट की, हर इंसान की, हर डिफरेंटली एबल की बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसकी इंजरी अलग है, तो उनको उनकी इंजरी के हिसाब से ही ट्रेनिंग कराई जा सके। ये नहीं कि हम 51 या 52 या 53 को 57 की ट्रेनिंग के साथ कंपेयर कर पाए, क्योंकि उनकी बॉडी की रिकवरी, उनकी बॉडी की स्ट्रेंथ अलग है, लोअर क्लासेस की अलग है। तो हमें ये चीज मेनली देखनी पड़ेगी कि किस इंजरी को ध्यान में रखते हुए कि इसकी कितनी कैपेबिलिटी और ये कितना वर्कआउट ले सकता है। तो ये भी एक मेन चीज है जिसको हमें देखना पड़ेगा। बाकी और 2-3 चीजें थी जो वो आप लोगों ने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड कर ही दी हैं। तो संदीप नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे क्योंकि टाइम भी नेक्स्ट है हमारा थ्रोइंग फ्रेम। थ्रोइंग फ्रेम एक इक्विपमेंट है हमारा, व्हीलचेयर यूजर ड्यूरिंग द कंपटीशन यूज करते हैं। मतलब आप खड़े होके नहीं फेंक सकते, तो आपको बैठ के ही फेंकना पड़ेगा। तो वो स्पेसिफिक होता है हर एथलीट का, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करा के वो खुद उसको बनवाता है। मतलब खुद ही कस्टमाइज कराना पड़ता है थ्रोइंग फ्रेम को। आईपीसी ने गाइडलाइन दी है उसकी मेजरमेंट की, उस मेजरमेंट के अंदर ही आपको अपनी डिसेबिलिटी, आपको अपनी कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि हर एथलीट अलग तरीके से थ्रो करता है। कोई साइड थ्रो करता है, कोई फ्रंट थ्रो करता है, कुछ एथलीट बैक थ्रो भी करते हैं। जैसे 31, 32 के एथलीट हैं, क्योंकि उनकी स्टिफ होती है कमर, तो वो उल्टे पीछे की तरफ थ्रो करते हैं। तो वो हर एथलीट अपने हिसाब से कस्टमाइज करता है थ्रोइंग फ्रेम को, और उसकी जो मेजरमेंट हाइट है वो 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो 30 सेंटीमीटर से लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। और जो बैक है, अगर जैसे सीवियर डिसेबिलिटी के एथलीट हैं वो बैक लगाते हैं सपोर्ट के लिए, 51, 52, 53, 4 तक भी यूज करते हैं, और 31, 32 में यूज करते हैं। तो उसकी जो बैक की वो है लेंथ है, वो मोटाई है, वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उस पे पोल यूज कर सकते हैं पकड़ने के लिए थ्रो करते टाइम, बट वो मूवेबल नहीं होना चाहिए। उसका कोई भी पार्ट मूवेबल ना हो, स्ट्रेचेबल ना हो, क्योंकि अगर आप उसको मूवेबल करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी चेयर। आपके थ्रोइंग के टाइम पे आपकी बॉडी का कोई हिस्सा, थ्रोइंग चेयर पे बैठे बैठे आपका शरीर का हिस्सा, मतलब थ्रोइंग फ्रेम का हिस्सा जो है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए, उससे बाहर कंसीडर नहीं करते। और इसके साथ हमारे को हमारी बेल्ट वगैरह, वो सारी चीजें वो हर एथलीट के हिसाब से अपनी डिजाइन करता है। कोई पैर पे बांधता है, कोई पेट पे बांधता है, कोई हिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हिप पे लगाता है। तो ये हमारे थ्रोइंग फ्रेम का है। एकता, आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज आप आइएगा। हाँ सर, इसमें मैं टाइमिंग्स वाला पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी। वो आगे है एकता, अगली जो स्लाइड होंगी उनमें होगा। जी जी जी, फिर आप कंटिन्यू कीजिए। मैडम किसी का, हाँ कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। संदीप जी। जी हाँ, नेक्स्ट पेज। हमारे को ड्यूरिंग द कंपटीशन क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, ये काफी मेजर पार्ट है एक एथलीट के लिए, क्योंकि हम लोग तैयारी कितनी भी अच्छी कर लें, प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी कर लें, पर जब हम लोग कंपटीशन में जाते हैं तो वो रूल्स रेगुलेशन हमारे को पता होना चाहिए, प्रॉपरली हम उनको फॉलो करें, नहीं तो हमारा कंपटीशन खराब हो जाता है। क्योंकि जब एकदम से वहां जाते हैं और चीजें चेंज मिलती हैं तो एथलीट पे बहुत प्रेशर आता है, मेंटली भी और फिजिकली भी, कि आपकी चेयर को डिस्क्वालीफाई कर दें। तो प्रॉपर अपने इक्विपमेंट और आपकी जो एसेसरीज हैं उनका प्रॉपरली ध्यान रखें कि क्या क्या
आईपीसी की गाइडलाइन के हिसाब से उनको मॉडिफाई करें। आपका चेयर की हाइट चेक कर ले कंपटीशन में जाने से पहले कि भाई ये कंप्लीट है कि नहीं है, 75 सेंटीमीटर से कम है, कहीं ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि एक बार हुआ है, आपको याद होगा वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 में शताब्दी की चेयर की हाइट ज्यादा थी और वो आप लोगों ने उसको लास्ट मोमेंट तक ऑटोबॉक में ले जाके उसको कटवाया था। तो मैं स्पेशली इंटरनेशनल एथलीट को तो ये जरूर कहूंगा कि आप लोग प्रॉपरली आईपीसी की वेबसाइट पे जाके इस गाइडलाइन को देखें और जो भी रूल रेगुलेशन है वो प्रॉपरली फॉलो करें। हाइट का है, बैक का है, शोल्डर मतलब पोल का है, तो ये सारी चीजें आप जरूर देखें। दूसरा आता है इसमें टाइमिंग का हमारे को बड़ा ध्यान से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि जो सीवियर डिसेबिलिटी उनमें 5 मिनट मिलते हैं आपके फ्रेम पे बैठने के बाद, आपको रेडी होने के लिए और थ्रो करने के लिए, वार्म थ्रो आपको करने के लिए और आपकी बेल्ट वगैरह बांधने के लिए, प्रॉपर आपको रेडी होने के लिए। जो लोअर क्लास है उसमें 5 ही मिनट मिलती है और जो हायर क्लास है उसमें तो और भी कम है, 4 मिनट मिलते हैं। तो पहले ही आप लोग अपना सारी चीजें बेल्ट वगैरह रेडी रखें, जितना जल्दी आप उसको सेटल करेंगे, बांध देंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैठने के बाद भी हमारा जो थ्रोइंग फ्रेम है वो मूव होता रहता है, तो उसको प्रॉपर चेक करके और जब तक बेल्ट वगैरह ना बांधे, जब तक थ्रो ना करें, जब तक कि वो प्रॉपर सेटल ना हो जाए। आईपीसी के जो ऑफिशियल होते हैं उनको बोल के कह सकते हैं कि भाई इसको प्रॉपर टाइट करो, ये मूवेबल है, मूव क्यों है, क्योंकि अगर वो मूव होगा तो आपका इवेंट खराब हो सकता है। एकता, आपका और सजेशन है इसके बारे में? हाँ सर, एक पॉइंट ये मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो F51 के कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो थ्रोइंग फ्रेम पर भी अपना बैलेंसिंग नहीं कर पाते, तो वो व्हील चेयर पर बैठकर और नीचे हाँ बिल्कुल, फ्रेम ये लगाकर, हाँ, जो लोअर क्लास हैं वो अपनी व्हीलचेयर भी यूज कर सकते हैं। मतलब चाहे आप उसके नीचे फ्रेम लगाओ या ना लगाओ, वो उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती, तो आप अपनी व्हीलचेयर भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि आप व्हीलचेयर नहीं ले जा सकते, बस उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके जो घुटने हैं वो प्रॉपर कुशन को टच होने चाहिए। घुटने का भी एक बड़ा रोल है। और हिप का एक पॉइंट और है इसमें, हिप आपकी पुश नहीं, मतलब जब आप थ्रो करते हैं तो वो उठनी नहीं चाहिए, उसकी हिप की जो क्लियरेंस है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिप के बहुत ज्यादा फाउल्स हमने देखे हैं और उसका ज्यादा एथलीट भी नहीं देख पाता, पता नहीं चलता कि वो, क्योंकि उस थ्रो के टाइम पे उसको पता ही नहीं होता होगा कि भाई वो बेल्ट कितनी भी टाइट कर ले फिर भी थोड़ा बहुत अगर रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइट बेल्ट लगाएं। और हिप का जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि भाई हमारे हिप मूव ना करें, क्योंकि अगर आजकल आईपीसी हिप के मूव पे बहुत ध्यान दे रही है, घुटने के मूव पे। कोई भी जो आपकी बेल्ट है वो स्ट्रेचेबल नहीं होनी चाहिए। जो हम लोग बेल्ट यूज करते हैं वो स्ट्रेचेबल नहीं हो सकती, वो हार्ड होनी चाहिए। और सपोर्टिंग स्टाफ जो हमारे साथ होता है, वो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो लोअर क्लास में दिया जाता है 32 तक, F32 31 में, और F51 52 53 54 में वो आपको ड्यूरिंग द कंपटीशन पर्सनल स्टाफ अलाउ करते हैं, जो आपके एस्कॉर्ट होते हैं। बट उनके लिए भी गाइडलाइन है, वो आपको एक बार चेयर पे शिफ्ट करेंगे। और अभी नया रूल आया है जिसकी वजह से पहले हमारे को 2 आदमी मिलते थे शिफ्ट करने के लिए, कि आपको एक आपका एस्कॉर्ट और एक आईपीसी की तरफ से वो आपको उठा के और आपकी चेयर पे या थ्रोइंग फ्रेम पे शिफ्ट कर देते थे। अभी इस साल एक नया रूल आया कि आईपीसी के जो ऑफिशियल होंगे वो आपको ना शिफ्ट करेंगे ना वो आपकी कोई हेल्प करेंगे, वो आपको थ्रोइंग फ्रेम को बांध देंगे, बेल्ट से लॉक कर देंगे। उसके बाद आप खुद शिफ्ट हो या आपका एक जो एस्कॉर्ट है वो आपको शिफ्ट करे। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज है कि या तो हम जो हमारे साथ एस्कॉर्ट ट्रेवल कर रहा है वो ऐसा हो कि जो आपको उठा के शिफ्ट कर दे, और या फिर कुछ इस तरह के अपने थ्रोइंग फ्रेम डिजाइन करें, जैसे व्हीलचेयर के नीचे कोई फ्रेम वगैरह बना के उसकी हाइट को मेजर करके, ताकि वो हाइट बढ़ पाए। और जो इंसिडेंट शेयर करूंगी अमित, लंदन पैरालंपिक चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब हम गए थे 2017 में,
मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि मैं 2016 में ही अभी एक रियो का मेडल बनाकर लौटी थी, और पैरालंपियन होने के नाते और मात्र 1 साल ही निकला था, तो मुझसे बहुत उम्मीदें थी 2017 में भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कि कोई ना कोई मेडल मैं जरूर लेकर लौटूंगी। लेकिन यही जो रूल था, पता नहीं क्यों मुझे भी वो रूल का पता नहीं चला या मेरी इग्नोरेंस रही, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा, और उस वक्त मेरी को जो एस्कॉर्ट कर रही थी वो मेरी डॉटर थी, और मैं 5 फीट 9 इंचेस की हूँ, लगभग 80 केजी मेरा वजन है, बैठे बैठे बढ़ भी जाता है, और ऐसा नहीं था कि मेरी डॉटर अकेले, वो भी पैनिक कर गई, मैं भी पैनिक कर गई, और ऑन अ स्पेशल परमिशन उस वक्त हमारे जो जैवलिन थ्रोअर हैं संदीप, उनको फिर कॉल किया गया, और लास्ट मिनट में हड़बड़ाहट में उन्होंने मुझे शिफ्ट किया, ना मेरी बेल्ट ठीक से बंधी, एंड दैट वाज इनफ साइकोलॉजिकली मुझे हिलाने के लिए, नर्वस करने के लिए, कि एक पैरालंपियन होते हुए और अपनी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होते हुए भी मैं अपना मेडल पोजीशन मिस करके आई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन टेक्निकल एस्पेक्ट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो जितनी ट्रेनिंग हमें अपने स्पोर्ट की स्किल की करनी होती है, व्हीलचेयर एथलीट को उतनी ही ट्रेनिंग अपने अटेंडेंट के साथ सीट पे व्हीलचेयर से शिफ्ट होने की, बेल्ट्स बांधने की, अपनी पोजीशन सेट करने की। पुष्पा जी का एक चैट में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर एन एथलीट। तो पुष्पा जी, दिस इज अ वेरी इंडिविजुअल डिसीजन। हर एथलीट की, जैसे अमित ने कहा कि डिसेबिलिटी अलग होती है, मसल ग्रुप कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका कौन सा बैलेंसिंग एंगल बन जाता है, क्या स्ट्रांग आर्म बन जाता है, क्या वो रिवर्स में थ्रो करना चाहता है, स्पेशली क्लब में ये अलाउड होता है। कुछ लोग फ्रंट, मैं हमेशा फ्रंट से थ्रो करती हूँ, कुछ लोग साइड से थ्रो करते हैं, तो ये बड़ा इंडिविजुअल कंसेप्ट है, इसके लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, बट बेसिक्स रखने पड़ते हैं कि जो बेल्ट हैं वो नॉन स्ट्रेचेबल हो, बैक रेस्ट फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, चाहे आप व्हीलचेयर पे हैं तो भी बहुत हार्ड और टाइट होना चाहिए, उसमें से आपको इलास्टिसिटी नहीं मिलनी चाहिए, बैक रेस्ट की विड्थ 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घुटने का जो पिछला हिस्सा है वो आपकी सीट को टच करना चाहिए, और ग्लूट की जो बोन है वो मूवमेंट पे, क्या होता है हम लोगों का टॉर्सो बैलेंस नहीं होता, जब हम थ्रो कर देते हैं तो हम पूरा आगे गिर जाते हैं, हालांकि पोल से हमें सपोर्ट होता है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है कि हम पूरा आगे गिर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हिप उठ जाता है, अननोइंगली फॉल्ट होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीजें हैं, और ये भी पार्ट ऑफ स्पोर्टिंग ट्रेनिंग है, तो कोच को जितना समय थ्रो सिखाने में लगाना पड़ता है, उतना ही समय अटेंडेंट के साथ उन्हें प्रैक्टिस करने का भी देना पड़ता है कि वो शिफ्टिंग, बेल्ट टाइम, एंड वो एक टाइम फ्रेम के अंदर कर सकें। दूसरा दे दिया, वो दूसरा पे जी हाँ बिल्कुल। देखिए वो बात वही आ गई कि हमारे को ट्रेनिंग से ज्यादा कंपटीशन के टाइम पे रूल्स का ध्यान रखने वाली बात है, आपने खुद उसका उदाहरण दे दिया। और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब हमारे थ्रो चल रहे होते हैं तो हमारे एस्कॉर्ट को अलाउ नहीं होता कि वो बीच में बात करे, वो आपके पास 3 थ्रो के बाद आ सकता है, अगर आपको कंटिन्यू 6 थ्रो मिल रहे हैं तो वो आपको पानी पिलाने के लिए या कोई और हेल्प के लिए, वो भी 1-2 मिनट का टाइम होता है उसी के अंदर। तो इसमें टाइम की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर आपने बेल्ट बांधने में ही ज्यादा टाइम खराब कर दिया तो आप इतने हड़बड़ा जाएंगे कि आपको ना वार्म अप थ्रो मिलेंगे ना और कुछ, आपका पूरा कंपटीशन खराब हो जाएगा। तो आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि मुझे इतने 2 मिनट के अंदर ये बेल्ट बांधनी है, मुझे इस एंगल में थ्रो करना है, वो मेंटली पहले ही सेट करके जाए स्पेसिफिकली, तो आपका कंपटीशन अच्छा जाएगा। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो वहां बारिश हो रही है या वेदर चेंज हो जाता है तो लोअर क्लास में वो बहुत इफेक्ट डालता है। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी ट्रेनिंग भी हर मौसम में करें, हर टाइम पे करें, चेंज कर करके करते रहें, क्योंकि पता नहीं चलता किस टाइम पे इवेंट हो रहा है, क्या वेदर होगा। तो कोचेस के लिए स्पेशली ये मैं कहूंगा कि खैर ये सब नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, सबको पता है, पर फिर भी एक पैरा एथलीट के लिए, व्हीलचेयर एथलीट के लिए काफी इफेक्ट पड़ता है। अब अगर मैं आपको बताता हूँ, रियो पैरा ओलंपिक गेम्स में मेरा खुद का इसी तरह इवेंट खराब हुआ था
क्योंकि ड्यूरिंग द कंपटीशन से 15-20 मिनट पहले ही जैसे हम लोग कॉल रूम से अंदर जा रहे थे, वहां अच्छी खासी बारिश हो गई, और वो जो ग्लू है उसने बारिश की वजह से, और मेरा पहला ही था, फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे ही लेने थे, वो ग्लू प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था। वो बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती हैं। हर चीज को ध्यान दें, आपके कोचेस के साथ, आपके स्पोर्टिंग स्टाफ। मैंने कहा ना कि रिकवरी और ये दूसरी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ट्रेनिंग के पार्ट से ज्यादा आप इन चीजों को फोकस करें। एकता, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ अगर है तो प्लीज एकता आए। I think we can move to the next slide. संदीप, एकता को लेंगे? ओके, वही रूल्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ एंड कोचेज का हमने इसमें अभी भी काफी उसके बारे में बातचीत की है, कि भाई कोच को क्या क्या पार्ट प्ले करने हैं। देखिए, व्हीलचेयर एथलीट के लिए सबसे बड़ा पार्ट है इमोशनली। एक कोच को अपने एथलीट के साथ इमोशनली अटैच होना पड़ेगा, उसकी हर परिस्थिति को, जैसे आपने खुद मेंशन कर दिया कि उनका ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, बाउल कंट्रोल नहीं होता, तो बहुत डिफिकल्टीज होती है स्पाइनल कॉर्ड एथलीट के साथ। तो जब तक वो प्रॉपरली उनको इमोशनली अटैच नहीं होंगे और हर चीज के बारे में नहीं जानेंगे, तो एथलीट और कोच के बीच का जो गैप है वो कभी भर नहीं सकता। और यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले कोच ही करता है। वो उसका मेंटर भी है, वो उसको साइकोलॉजिकली भी अप करेगा, वो उसको ट्रेनिंग भी कराएगा। तो जब तक वो उसे इमोशनली अटैच नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि एथलीट अपना परफॉर्म कर पाएगा अच्छी तरीके से। Next slide, Sandeep. नहीं, अभी है इसमें। Okay, we can go back. Yes. कोचेज को वही बात है कि उसकी डिसेबिलिटी के प्रति प्रॉपर अवेयर होना चाहिए, और सपोर्टिंग स्टाफ ने फिजियो का पार्ट भी मेंशन कर ही दिया है कि भाई फिजियो का बहुत बड़ा पार्ट है एक पैरा एथलीट के लिए। और सपोर्टिंग स्टाफ में मोस्टली जो लोग होते हैं वो ट्रेंड लंबे टाइम तक अगर आपके साथ अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, और कहाँ एथलीट सफर कर रहा है, किस चीज को लेके वो डिस्टर्ब है। तो मेनली तो यही कहूंगा कि कोच, उसको दोस्त भी बनना पड़ेगा, उसको भाई भी बनना पड़ेगा, उसको डांटना भी पड़ेगा, एक फादर की तरह उसको ट्रीट भी करना पड़ेगा, और एक माँ की तरह उसके लाड भी लड़ाने पड़ेंगे। क्योंकि जो ऑलरेडी खुद पहले ही मोस्टली जो पैरा एथलीट है या जो डिफरेंटली एबल है, व्हीलचेयर यूजर है, वो पहले ही या तो किसी को नई इंजरी होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, या किसी का पैर या हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, सॉरी हाथ का तो नहीं आता इसमें, तो वो एकदम से इतने डिप्रेस हो जाते हैं, मेंटली ये लगता है कि अब क्या होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे होगी। तो उनको मेन मोटिवेट करने के लिए आपका सपोर्टिंग जो साथ में रहते हैं वही सबसे ज्यादा काम करते हैं, और कोचेस काम करते हैं। एकता है लाइन पे मैम? एक बार अगर हो तो हम एकता को ले लेते हैं। एकता? हाँ जी मैम, हाँ जी, आप बोलो एकता, योर टर्न, प्लीज गो अहेड। हाँ, बस इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी मैम कि वेदर इज सच अ बिग चैलेंज, स्पेशली फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड, की एक्सट्रीम वेदर किसी भी तरह का, चाहे वो सर्दी का हो चाहे वो गर्मी का हो, तो वो बहुत ज्यादा असर करता है। वी नीड टू प्रिपेयर इन दैट सिचुएशन टू। बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर कवर्ड. Amit also touched upon this, and I can also from my personal experience say this, क्योंकि मुझे spastic paraplegia है और मेरी बॉडी सर्दी नहीं लेती है। और जैसे अक्सर मैं और अमित की बात होती है, तो अमित सरोहा की बॉडी को हीट से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनकी बॉडी स्वेट नहीं करती है, अंदर अंदर उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और स्वेटिंग होती नहीं है बॉडी को ऑटोमेटिक कूलिंग के लिए। बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो तो अमित का गेम खराब होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो तो मेरा गेम खराब होता है, ह्यूमिडिटी से ग्लू पे असर आ जाता है। तो डेफिनेटली weather plays a very important factor in wheelchair athletics and in performance of the athletes. So a holistic training and emotional preparation is also very important, कि अगर by the way हमें हमारे हिसाब का temperature या हमारे हिसाब का नहीं मिल रहा है, तो मुझे याद है कि 2010 का जो मैंने मेडल बनाया था उसमें फुल बारिश थी,
मतलब इट वाज रेनिंग, आई वाज वेट एंड इट वाज चाइना, और बिल्कुल गुंगजाओ में 5 डिग्री भी टेम्परेचर शायद नहीं था, ऊपर से कपड़े बिल्कुल गीले थे, ग्रिप बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अगर मेंटल स्टेबिलिटी रहती है तो हम लोग अपना फोकस रख सकते हैं। तो मेंटल ट्रेनिंग भी, जैसे इमोशनल सपोर्ट जिसे कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड संदीप। यस, गो अहेड अमित। थैंक यू। देखिए, ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है और ये बहुत जरूरी है, गलत कैटेगरी में खेलना। ये है तो बड़ा कंट्रोवर्शियल, पर जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ नया एथलीट क्या करता है मोस्टली कि वो चाहता है कि मैं एक लोअर क्लास में खेलूं, मुझे एक लोअर क्लास मिले और मैं खेलूं उसमें और मेडल जीतूं। बट लॉन्ग टाइम में उसका बहुत नुकसान होता है। अगर आप अपनी जेन्युइन कैटेगरी में नहीं खेल रहे हो, आप 2 से 3 साल अपने स्पोर्ट्स में लगा रहे हो और आपने एक लोअर क्लास में पार्टिसिपेट कर लिया, नेशनल में भी चलो आप लोगों ने मेडल जीत लिए, बट जब आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे जाओगे 2 से 3 साल के बाद, वहां जब आपकी क्लासिफिकेशन होगी वो हायर क्लास में आपको डाल देंगे। तो जो आपका एफर्ट है वो सारा, अगर आप शुरुआत में ही अपनी जेन्युइन कैटेगरी में खेल रहे हो और आपको पता है कि मेरी कैपेबिलिटी है, आपके कोच को पता चल जाएगा कि हाँ आप इस स्पोर्ट्स में कर सकते हो अच्छा या नहीं कर सकते, तो वो आपके पास बिगिनिंग में आपके पास टाइम है कि आप स्विच कर जाओ दूसरे स्पोर्ट्स में। और मैं कोचिंग को यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई एथलीट आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ वो इस कैटेगरी में कर सकता है अच्छा, तो उसको प्रॉपर उसी इवेंट में रखें। अदरवाइज उसको एडवाइज करें कि आप दूसरा स्पोर्ट्स कर सकते हैं। वो हर कैटेगरी में, हर डिसेबिलिटी में पूरा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स है, शूटिंग है, स्विमिंग है, आर्चरी है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बोशिया है, कोई भी इवेंट आप कर सकते हैं। पर अगर आपने वो गलत कैटेगरी चूज करके और अपने 2 से 3 साल उसी में लगा दी और फाइनली आपकी जेन्युइन कैटेगरी मिलती है जो कि हायर होती है, तो ना तो आप उस कैटेगरी में परफॉर्म कर पाते हैं, आप नेशनल से भी जाते हैं, इंटरनेशनल से भी जाते हैं, और आपका जो स्पोर्ट्स कैरियर है 3 साल के बाद आप स्विच करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इसमें पीसीआई को भी इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि भाई आप भी थोड़ा सा जो हमारे क्लासीफायर हैं बढ़ाएं, और जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे हमारे जो क्लासीफायर हैं उनको भी इन्वॉल्व करें चीजों में, उनकी गाइडेंस ले, क्योंकि अभी तक क्या है कि 1000-1500 एथलीट एक बार नेशनल चैंपियनशिप में आ जाते हैं तो उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हो पाती। तो स्टेट लेवल पे इस काम को शुरू करें और थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। और मैं एथलीट को भी यही कहूंगा, कोचेज को भी यही कहूंगा कि वो आपके एथलीट के फायदे के लिए, अगर आप अपनी जेन्युइन क्लास में शुरू से ही खेलेंगे तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से ही किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कोई डिफरेंटली एबल है, कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, उसके 3 साल के बाद उसका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो जाता है। तो वो जो 3 साल उसने लगाए और अपने पीक टाइम पे लगा दिए, उसके बाद दोबारा नए स्पोर्ट्स में जाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अपनी जेन्युइन कैटेगरी में ही कोशिश करें कि अपनी जेन्युइन कैटेगरी में खेलें, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मेरी क्या कैपेबिलिटी है, कितना मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मुझे ये स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे स्विच करना चाहिए। एकता, आप इसमें कुछ और आपका कोई सजेशन हो? Okay, so we can move on the next slide. Hello. हाँ Ekta, okay, we can hear you. Yeah. It is all covered, sir. Okay, All covered, we sir. move to the next slide, please. Other important. लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर साल नए रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, और इसमें हमारी फेडरेशन का और साई, मैं मेन तो फेडरेशन को ही कहूंगा कि एथलीट को तो खैर अभी होना ही होना चाहिए। अब जैसे आपने खुद उदाहरण दे दिया कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई और रूल चेंज हो गया, पता था नहीं, तो इसमें हमारी फेडरेशन का बहुत बड़ा रोल है कि वो हर महीने 2 महीने में एथलीट के साथ टच करे। कोई नया रूल आ रहा है तो उनको बाय मेल या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करके या कोचेस को बताए, खुद एथलीट को भी अवेयर होना चाहिए, मैं यही कहूंगा। पर फिर भी हमारी फेडरेशन का भी ये रोल बनता है कि वो नए जितने भी रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, जितनी भी नई चीजें आ रही हैं, वो एथलीट तक पहुंचाए। क्योंकि मेन आपने कितनी मेहनत की है, कितना
कंपटीशन अच्छा करने की कोशिश की, आपने कितना ही रिजल्ट देने की कोशिश की है, आपने ग्राउंड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मानता हूं मैं, आपने कर दिया, बट अगर ड्यूरिंग द कंपटीशन एक छोटी सी चीज ने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो आपका पूरा कंपटीशन खराब हो जाएगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कहीं पढ़ी हुई बात नहीं है, ये खुद तजुर्बा किया हुआ है। तो मैं फेडरेशन को स्पेशली, आप प्रेसिडेंट हैं, मैं आपको स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की चीजें एथलीट के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए। फेडरेशन की तरफ से कोई ऐसा माध्यम बनाना चाहिए जिससे एथलीट की कोई क्वारी है तो आपसे पूछ सके, बात कर सके। कोई एक ऐसी कोई पोस्ट आप बनाइए, एक आदमी को लगाइए स्पेशली पीसीआई में, जो स्पेशली एथलीट की इन्हीं क्वारी के बारे में बताए, क्योंकि बहुत एथलीट ये हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता। स्टेट एसोसिएशन को इन्वॉल्व करिए कि भाई आप अपना काम प्रॉपर करिए, उनको गाइडलाइन भेजिए कि नए रूल बुक ये आई हैं, आप इन पे काम करिए। और क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली इवेंट के टाइम पे आपको हर चीज की नॉलेज नहीं है, कॉल रूम में हमारा बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, आपको कॉल रूम में टाइम में पहुंचना चाहिए। जैसे सुंदर का ही उदाहरण ले लीजिए, 1 मिनट लेट हुआ था तो वो रूल्स का नहीं पता होना। 1 मिनट की वजह से ओलंपिक का 1 मेडल हमने मिल We will definitely continue having these seminars. I think COVID-19 में सबसे अच्छी चीज जो निकल कर आई है, एक ये माध्यम हम लोगों को मिल गया है जिसको हमने डिस्कवर किया है, यूज किया है, और डेफिनेटली धीरे धीरे एथलीट्स यूज टू हो रहे हैं इस माध्यम को यूज करने का. So we will continue to have at least one meeting a month with athletes, and we will be definitely doing this. We can move to the next slide, please. Time भी हो रहा है, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर लेने हैं. Okay. Oh, that's a wonderful. That's नहीं है तो काफी बोलने को I know, टाइम कम है तो हाँ. That's what Amit, ये इंट्रोडक्शन है, एक तरीके से एक शुरुआत है. This is the first capsule जिसमें हम लोग सबको एक ग्लिम्प्स दे रहे हैं, and because it is such a vast topic and बहुत सारी चीजें सीखने को, लेकिन कहते हैं ना एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन तो लोगों के सामने आगे आए कि इतनी मेहनत जाती है पैरा स्पोर्ट्स में, और एथलेटिक्स सबसे बड़ा इवेंट है तो उसको भी हमने विजुअली इम्पेयर्ड में अलग किया, और उसमें हमने जैसे आज हमने व्हीलचेयर का अलग किया. एक बार बार सवाल आ रहा है, आप जो ग्लू यूज करते हैं, क्योंकि सिर्फ 51 कैटेगरी मोस्टली है जो उसको यूज करती है, उसका शायद मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी व्हीलचेयर एथलीट. तो वो जरूर बताएं कि टाइप्स ऑफ ग्लू क्या होती हैं, या कौन सी ब्रांड की ग्लू अच्छी होती हैं, और उन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है. देखिए मैम, हम लोग जो यूज करते हैं वो रग्बी वैक्स यूज करते हैं, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फॉरेन से हम लोग मंगवाते हैं और वो अमेरिका से मंगाया जाता है. इंडिया में अभी तक हम लोगों को ऐसा कोई ग्लू मिला नहीं है जिसको हम लोग यूज कर पाए ट्रेनिंग के टाइम पे या थ्रो के टाइम पे, तो वो हम लोग वही ग्लू यूज कर रहे हैं, रग्बी वैक्स के नाम से है वो, और वो यूएस से मंगाया जाता है, इंग्लैंड में भी अवेलेबल है. तो इसको आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या स्पेसिफिक शॉप्स हैं? नहीं, ऑनलाइन ही ऑर्डर किया जाता है. सो कैन वी आस्क फॉर अ फेवर? बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि आप क्या कुछ लिंक्स हमसे शेयर करेंगे तो हम उनको अपने वेबसाइट के माध्यम से या हमारे बैंक में हम रख सकते हैं कि अगर किसी का कॉल आता है तो हम उसको वो एड्रेस या वो लिंक हम शेयर कर सकते हैं. मैं बिल्कुल वो आपको शेयर कर दूंगा सेशन के बाद, और फिर आप उसको भेज सकते हैं, वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, और वो ऑलरेडी अगर कोई भी सर्च करेगा गूगल पे भी तो रग्बी वैक्स के नाम से मिल जाएगा. क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, शुरुआत में काफी डिफिकल्टीज आई थी जब हमने शुरू किया था कि ग्लू कहाँ से आए, तो वो काफी रिसर्च के बाद चीजें निकल के आई. हमारे एथलेटिक्स के डॉक्टर राकेश गुप्ता सर ऑनलाइन है. कैन वी इनवाइट हिम ऑन द स्क्रीन टू गिव अ क्लोजिंग एड्रेस? डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून. अनम्यूट करेंगे सर आप, वॉइस नहीं आ रही है. Okay. So welcome sir. Sir is the chairperson for the athletics, para athletics, and welcome to you sir. I will like you to conclude the session. We have to extend thanks to
the Sports Authority of India, a heartfelt gratitude to Ekta and Amit, fellow athletes, my friends, and at the same time, one is a HCS officer, the other is now a coach in Sports Authority of India. I think sports ने हमें बहुत empower किया है, and I will like you to close the address and close the session, sir. थैंक यू दीपा जी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ही मैं ज्वाइन कर पाया, पहले वाला सेशन में ज्वाइन नहीं कर पाया था। जी सर। और आज जो है अमित सरोहा जी ने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही डिटेल में और पर्सनल एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, मुझे लगता है ये इसकी एक बहुत ज़्यादा जरूरत है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम टेक्निकली बात करते हैं तो शायद उतनी हम गहराई तक या उतनी वो सारी चीजें टच नहीं कर पाते जो आज अमित सरोहा ने दिल से मतलब वो चीजें टच की हैं, और मतलब वो एक्सपीरियंस शेयर किया है। शायद एक कोच या जो एक टेक्निकल लोग होते हैं उनके पास उतना क्लोजली नहीं होता, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और आपने जो बीच बीच में इसको ऐड किया, एड ऑन जो किया, तो ये भी बड़ा जरूरी था, क्योंकि जहां जहां फिलर्स लग रहे थे आपको भी और हमें भी लग रहे थे, वो आपने वो बहुत अच्छे से उसको फिल किया, और एकता ने बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट किया चीजों को, जो जो चीजें उस पे मिस कर गए थे, और अमित को बड़ा सपोर्ट उसपे एक मॉरली सपोर्ट फील हो रहा था और इसीलिए बार-बार उनको इनवाइट कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसा सेशन जो एक होम एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हम दिया जाता है तो शायद हम बहुत अच्छे से ये सीख पाएंगे, और जिसमें पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव है ये, और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। हाँ, मैं उसी पे भी आगे आ रहा हूँ। बेसिकली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टेक्निकल सपोर्ट और वो सारे लोग चाहिए थे साथ में, जिसके बिना ये सेशन सक्सेसफुली हो नहीं सकता था। तो बेसिकली मैं तो बल्कि इसको थोड़ा रिवर्स कहूंगा कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ पीसीआई विद द हेल्प ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, ताकि हम The idea is promotion of para sports, by the awareness towards para sports, and वो कहीं ना कहीं हम अचीव कर पा रहे हैं, जो हमें रिस्पांस मिल रहा है उसके थ्रू। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जैसे जी अभी भी जो जैसे व्यूअर्स जो हैं या देखने वाले अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो मतलब एक क्यूरियोसिटी है करने की, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप सबके सहयोग से और इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे कि ऐसे कुछ टेक्निकल सेशन, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, अगर स्टेट वाइज अगर हम टेक्निकल को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम नेशनल चैंपियनशिप्स को और एथलीट को ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम जोड़ सकते हैं, और उनको हम अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। जो अभी एक लगता है नेशनल लेवल पे तो आ जाते हैं, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो इग्नोर हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी प्रमोट करने का थोड़ा जरूरत है। तो टाइम को देखते हुए आई विल रिक्वेस्ट टू टेक लीव नाउ फ्रॉम एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। जी अमित प्लीज बोलिए, आपका सेशन है। थैंक यू। हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, राधिका मैम ने इसको शुरुआत की, बातचीत हुई और ये हमने किया। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था मैंने आपके साथ वही शेयर किया है जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा और जिया है। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथी एथलीट हैं, उनको भी हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि जब तक हम सीनियर एथलीट अपने से जूनियर को मोटिवेट नहीं करेंगे या उनको आगे लेके आने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक पैरा स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करेगा। तो मैं अपने साथी एथलीट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरे मन में था और कहीं ना कहीं मैं मिस कर गया था इसको, कि जितने भी मेरे सीनियर साथी एथलीट हैं वो कम से कम अपने स्पोर्ट्स करियर में एक एथलीट को सपोर्ट जरूर करें, किसी भी तरीके से करें चाहे वो, और उसको उस लेवल पे लेके आए जो आपने अचीव किया है, चाहे वो ट्रेनिंग से है, मेंटली है, किसी भी तरीके से है, और उस कड़ी को आगे बढ़ाए। मेरे साथी कर रहे हैं, देवेंद्र सिंह रहेलू हैं, वो अच्छी कोचिंग कर रहे हैं, फरमान भाई वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सुरजीत भी अच्छा कर रहे हैं, और भी जितने हमारे जो सीनियर एथलीट छोड़ चुके हैं, मैं उनको कहूंगा कि वो दोबारा कोचिंग में आए, बहुत स्कोप है पैरा स्पोर्ट्स में, और इस मुहिम को आगे लेके जाएं। और रही एकता को साथ ज्वाइन कराने की बात, तो सब मैं एकता को इसलिए साथ लेके आया था कि कई पहलू ऐसे हैं शायद मैं मिस कर जाऊं, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, 15 कैटेगरी थी,
और मुझे भी हर कैटेगरी के बारे में डीपली शायद मैं ना बोल पाऊं, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत कुछ मिस किया है, तो मुझे लग रहा है जो मैं कह सकता था, और इसीलिए मैंने एकता को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि फीमेल है और वर्ल्ड क्लास है। Yes, as an introduction, it was a very good session, Amit, and Ekta's presence in the session clearly shows that we want more and more female participation also in para sports. हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और हमारी फेडरेशन, हम सब का एक एंडेवर है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी दिव्यांगता में आगे आकर स्पोर्ट्स से जुड़े। और आज फिर एक बार सबका थैंक यू। कल हम मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन नॉलेज, मेरे को भी बहुत ज्यादा शूटिंग के बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं कल के सेशन का बहुत इंतजार कर रही हूँ। मिस्टर नौटियाल इज गोइंग टू बी टेकिंग द क्लास, और बहुत जानकर खुशी होगी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी गगन नारंग हैज एग्रीड टू जॉइन एट सम पॉइंट एंड गिव हिज बेस्ट विशेस to all the para shooters and the para sports fraternity. So looking forward to meeting you all. Stay healthy, stay safe, have a good day ahead, and see you all tomorrow at 3 p.m. Please register your name on the Google form and write your name and address and designation in the chat box. Good evening. Namaskar.